Okay. So I grew up in localities where different and diverse strata of society lived, and their position did not align. Although I regarded everyone as equal, it was evident that not everyone held the same view. मतलब ठीक है अभी we are going with this, but अभी still it is not making sense to me. And I why you have written then? ठीक है. Probably आगे पढ़ के समझ में आए. In my locality, I observed minors suffering from silicosis, which shortened their life expectancy, but were not provided with adequate safety measures. Instead, were given cooking oil and jaggery as compensation. ये क्या सिलिकोसिस क्या होता है? सर इट्स लाइक माइनिंग वर्कर्स के लिए होता है, इशू आता है, जैसे वो अंदर जैसी अच्छा, डस्ट और पार्टिकल माइनस. ले लेते हैं ना। ओके, तो सिलिकोसिस रेदर शॉर्टन देन द लाइफ. गिविंग देम मास्क एंड ऑल सर, लाइक उनको ऐसे गुड़ दे देते हैं जस्ट कि अपने अंदर का जो भी डस्ट होगा वो जब खाएंगे तो निकल जाएगा, एंड अच्छा, ऑयल देते हैं जस्ट फॉर स्किन। ठीक है, चलो समझ गया. Although compliances were enforced by the government, workers without knowledge of their rights were exploited. Following this observation, I came to realize that there are several different problems faced by disadvantaged and marginalized section of society, which are pushing them into the bottom less pit of misery due to their lack of awareness of their rights, having little or no skill, or their historic marginalization. I acknowledge that there is a need to make some impactful change in the lives of those deprived communities, as I realize that my previous working targets of banking sector would leave me in a cubicle where would be a minimal opportunity to touch the life of these people. ये पूरा नहीं लिखना है तुम्हें. What you were thinking before और what we were doing before, उसकी कमी को, उसके shortcomings को नहीं लिखना है, ठीक है? सर ऐसा नहीं, लाइक मेरे पास जैसे बैंक का आईसीआईसी बैंक का आया हुआ है, बट मैं नहीं करना चाह रहा क्योंकि सर उसमें मेरा सिर्फ बैंक में जॉब रहेगा सर, मैं ग्राउंड में जाके कुछ कर ही नहीं पाऊंगा लोगों के लिए। सो हाँ आई वो तो नीडेड टू। ठीक है, मतलब why this course में why previous course is not, ये लिखने की जरूरत नहीं है ना. आगे पढ़ता हूँ मैं. In this field, I envision mediating community actions to support self-sufficiency, rights awareness, new skills, and access to the necessities, along with the working in a field that offers me an array of opportunity from urban to rural settings, whether it's government or NGO initiative, while catering to my interest and gaining positive recognition. During this course, I am certain that I'll gain a detailed understanding of different CODP practice, strategy making, socio-political intervention. कि CODP प्रैक्टिस फॉर व्हाट, क्या होता है ये CODP प्रैक्टिस, और कैसी स्ट्रेटजी तुम बनाओगे, और व्हाट आर द सोशल मतलब सोशियो पॉलिटिकल इंटरवेंशंस, तुम क्या प्रॉब्लम दूर करने के लिए चाहते हो. सर लाइक बहुत सारे होते हैं, लाइक मैंने जैसे देखा था सेक्स वर्कर्स, और उनके लिए भी लाइक जाके उनके लाइक डेवलपमेंट के लिए करते हैं। हम्म, वो तो हम समझ रहे लेबर हैं. वर्कर्स एंड ऑल। That can even analyze and engage with the present day complexity of the modern perspective and enhancing the. अच्छा है क्या CODP, तुम जरा समझाना हमें. सो लाइक इसमें सिर्फ एक इंडिविजुअल के लिए नहीं होता है सर, एक पूरी लाइक ऐसे सोसाइटी या पूरी एक जैसे कम्युनिटी होती है, हाँ उसके डेवलपमेंट के लिए काम करेगी, नॉट फॉर जैसे सिंगल पर्सन। हाँ, तो ऐसे तो उस फिर हम जैसे उसके डेवलपमेंट पे काम करते हैं, तो जैसे हम LSC है, लाइवलीहुड एंड सोशल एंटरप्रेन्योरशिप है, तो उसमें भी तो हम बोलते हैं कि कम्युनिटी के डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं. सर वो मोस्टली मेरे को जितना डिफरेंस लग रहा है उसमें ये होगा कि जैसे उसमें बिजनेस सेटअप या बिजनेस को बढ़ावा करने का होगा, बट इसमें बिजनेस के अलावा सर जैसे उनकी लाइफस्टाइल है, हम्म, जो कि नॉर्मल उनकी वर्किंग करने पे भी उनको जो इश्यूज आ रहे हैं, हम्म. जैसे जैसे यहाँ पे लिखा था कि काम तो कर ही रहे हैं ये, उनको माइनर वर्कर को वर्क तो मिल रहा है, बट उसके अलावा जो से इनकी राइट से कि लाइक उनको इश्यूज आ रहे हैं, लाइक इनको ऐसे कैसे कफ की प्रॉब्लम है और ये सब है, एंड इनको तो क्या दिया हेल्थ जा रहा है इशू ये है, सब तो दे वो रहे हैं। है ना मास्टर्स इन सोशल वर्क पब्लिक हेल्थ भी तो है कोर्स एक. व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट हेल्थ इश्यूज, तो पब्लिक हेल्थ वाला भी तो कोर्स है.
इफ यू आर टॉकिंग अबाउट women issues, तो women studies वाला भी कोर्स है. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट चाइल्ड एंड फैमिली बेस्ड इशूज, तो चाइल्ड एंड फैमिली का भी कोर्स है. सो कैसी प्रॉब्लम को डील करना चाहते हो थ्रू दिस सब्जेक्ट? हाउ डू डिफरेंशिएट? चलो एलएससी भी हम मान गए कि एलएससी मोस्टली ऑन देयर लाइवलीहुड इश्यूज पे हम उस पे बात करते हैं और उसको डील करने की कोशिश करते हैं. बट what other things that you want to discuss here which is not being discussed by a separate course? सर मे बी लाइक ऐसा हो सकता है कि थ्रू आउट सबका देखा जाएगा, लाइक जैसे क्या? नॉट जस्ट फॉर अ हेल्थ पर्सन, मतलब कि सिर्फ हेल्थ नहीं, ना कोई चाइल्ड या मतलब वुमेन डेवलपमेंट, इसमें सबको काउंट होगा. जैसे सर मैंने देखा था कि जो बीटीएस वर्कर्स है ना मुंबई में, हाँ. उनके उनका उसमें उनके डेवलपमेंट के लिए भी एक वो लगे हुए हैं, एनजीओ बने हुए हैं, उसमें जो वर्क कर रहे हैं हाँ. उनका सर अपन ना हेल्थ में डाल पाएंगे ना किसी में डाल पाएंगे. उनके सर जैसे उनको प्रॉपर वेजेस नहीं मिल रहे हैं, तो वो लोग किस में जाएंगे, वो आएंगे सीओडीपी में जाके होगा. नहीं, जब प्रॉपर वेजेस नहीं मिल पा रहे हैं तो वो तो एक्सेस ऑफ जस्टिस वाली बात हो गई. वो एलएलएम वाला कोर्स हो गया, वो प्रसन्ना वाला कोर्स. यूनिकनेस का फैक्टर क्या है तुम्हारे कोर्स में? हाँ, तुमने वो कोर्स अलाइनमेंट वाली जो वीडियो है, कोर्स सर डिस्क्रिप्शन देखा वाली, मैंने सर वो उससे कोर्स तुमको नई डिस्क्रिप्शन. आइडिया मिलता है क्या? मुझे ये नहीं समझ में आता है कैसे देखते हो कि तुम लोग बिल्कुल भूल ही जाते हो. उसमें बड़े देखा अच्छे सर. से मैंने बताया तो है. सी, पॉइंट है यहाँ पे कि आपको पता है कि डेवलपमेंट के एस्पेक्ट्स क्या क्या है. ठीक है, तुम हेल्थ पे काम करना चाहते हो, तुम एजुकेशन पे काम करना चाहते हो, तुम उनकी अवेयरनेस पे काम करना चाहते हो, तुम उसके लाइफस्टाइल को इम्प्रोवाइज करने का काम करना चाहते हो, मतलब सैनिटेशन, वाइब, लाइफस्टाइल, एवरीथिंग दैट यू वांट टू डू. अब जो तुम एक तो सेगमेंट की बात कर रहे हो ना, दो मतलब वो सेगमेंट की बात कर रहे हो, दोज हु आर वर्किंग राइट नाउ, मतलब जिनके पास लाइवलीहुड है. ये तो उनके लिए भी बात करता है जिनके पास लाइवलीहुड नहीं है, मतलब कोई लेजिटिमेट लाइवलीहुड नहीं है. तो नॉट ओनली वल्नरेबल, ये मार्जिनलाइज्ड और अबाउट टू मार्जिनलाइज दोनों के कम्युनिटी को पहले पहले ये बताते हैं ये कि कम्युनिटी स्ट्रेंथ कैसे बढ़ाया जाए. The first thing that you will be learning here is how to improve or increase the strength of these community strength का मतलब क्या हुआ? लोग एक दूसरे के बारे में सोचे, लोग एक दूसरे को सिंपैथी बनाए, है ना. देयर शुड बी अ, मतलब होता है ना कि फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस अमंग द कम्युनिटी. बात समझ में आ रही है तुम्हें? जी सर. उसके बाद जब कम्युनिटी को जब अब वो तो कम्युनिटी की फीलिंग है, अब हम अलग से जाएंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? कम्युनिटी की ऑर्गेनाइजेशन, सेल्फ हेल्प ग्रुप क्रिएट करना, उसमें किसी को हेल्थ लीडर बना देना, किसी को कुछ बना देना, ये सब प्रैक्टिस है वहां पे. ठीक है, मतलब इफ यू डोंट नो हाउ टू डू इट, तो तुम जब जाओगे उसमें कोर्स में तो तुम पढ़ोगे कि आप ग्रुप में जाके, उसमें कोई पढ़ा लिखा है तो उसको कोई रोल दे दो, कोई ये है तो उसको कोई रोल दे दो, उनको गेम खिलाओ आपस में, है ना, जिससे क्या है कि एक दूसरे के लिए सिंपैथी बढ़े, एम्पैथी बढ़े, और एक दूसरे के लिए वो ख्याल रख सके, और मतलब कम्युनिटी की बिल्डिंग, कम्युनिटी की स्ट्रेंथ बिल्ड हो. फिर आता है कि जब एक बार कम्युनिटी की स्ट्रेंथ बिल्ड हो गई, देन हाउ डू यू प्रैक्टिस डेवलपमेंट ऑन दैट कम्युनिटी. समझ आई बात? ठीक है सर, लाइक ऐसे कर सकते हैं क्या सर कि लाइक कि टुगेदरनेस पहले तो उनको नॉट जस्ट फॉर इंडिविजुअल खुद का नहीं सोच के पहले पूरी कम्युनिटी का सोचते हैं, कुछ पहले सोचना कम्युनिटी सिखाएंगे. की स्ट्रेंथ डेवलप करनी है, ओके हाँ. फिर उसके बाद उस पर डेवलपमेंट का प्रैक्टिस करना है. ठीक है. अब पॉइंट है कि जैसे मान लो मैं पहले एक गांव में गया, ऐसे समझो, एक दूर दूर से एग्जांपल समझो कि मैं गया एक गांव में, मैंने देखा वहां के लोग बिल्कुल मतलब बिलो मार्जिनलाइज्ड हैं या अबाउट टू बी वल्नरेबल हैं. वहां पे जो बहुत इरेगुलर बारिश हो रही है, या सिंस ऑल द लैंड्स दे हैड, है ना, वो उनको बेच चुके हैं, तो अब दे आर लैंडलेस, दे आर ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन द वेजेस दे गेट फ्रॉम द वर्किंग इन द फील्ड. तो अब ये क्या होता है कि इतनी जो डेप्रिविटी है ना, ये उनके कम्युनिटी स्ट्रेंथ को भी लूज कर देती है. वो फैमिली, सोसाइटी इसको होल्ड करके नहीं चल पाते हैं. ठीक है, दे स्टार्ट फाइटिंग अमंग ईच अदर. ठीक है, और उनके उनके जो ओवरऑल जो वो है ना, जो कल्चरल
कंपोनेंट है वो गायब होने लगता है। तुम किसी वैसे बस्ती उस्ती में जाओगे ना जहाँ पे होमलेस लोग रहते हैं, वहां पे भी देखोगे कि इवन दे आर लिविंग इन द सेम हाउस, है ना, एक ही घर में अलग से या एक ही किसी शेड के नीचे 10 लोग सो रहे हैं, बट स्टिल दे डोंट हैव दैट कम्युनिटी फीलिंग। समझ में आ रही है बात क्या कह रहा हूँ? जी जी सर। तो अब हमें अगर मान लो कि एक एक आदमी पे काम करना पड़े तब तो बहुत काम करना पड़ेगा। तो हम ये चाहते हैं कि पहले उनको कम्युनिटी की स्ट्रेंथ डेवलप करें उनको। अब जैसे मान लो किसी एरिया में गए तो तुमने बताया कि आप सब लोग साथ में हैं, हम लोग सब साथ में काम करेंगे, एंड देयर वुड बी एन नंबर ऑफ प्रैक्टिसेस, देयर वुड बी एन नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग इट। मैं तो ऐसे ही एक तो बता रहा हूँ कि फिर आप गए उसमें से कुछ कुछ लोगों को पहले एक स्पेशल स्किल पे तुमने काम करना शुरू किया, फिर कुछ लोगों को निकाले, तुमने लीडर्स बनाए, तुमने हेल्थ लीडर बनाया, तुमने सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया, तुमने अवेयरनेस का लीडर बनाया, है ना, लोगों को अलग अलग टास्क असाइन किए, उनको टीम बिल्डिंग कराई। तो और एक दूसरे को हेल्प करने के लिए इस तरह से क्या किया तुमने, एक एक कम्युनिटी डेवलप की, ठीक है। एंड देन विथ दैट कम्युनिटी आप उस कम्युनिटी के ऊपर आप डिफरेंट डिफरेंट डेवलपमेंट की, जैसे कि हमने बोला कि हम लोग सब लोग मिलकर पेड़ लगाएंगे, है ना, इन्वायरमेंटली अवेयर करने के लिए लोगों को, या कुछ भी ऐसा। तो वो क्या होता है कि ऐसे कम्युनिटी में अगर हम बाहर से कुछ इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो जल्दी कम्युनिटी में स्प्रेड होती है, ठीक है, और फिर उसका इम्पैक्ट भी ज्यादा होता है। तो वो चीजें हैं यहाँ पे, समझे? जी सर। तो इसको कोर्स डिस्क्रिप्शन को एक बार और पढ़ो और उसको सोचते हुए अब लिखो इसको, ठीक है, फिर से। बात समझ में आई? जी सर। तो तुम्हारा जो वो सब एक्सपीरियंस है उस सब के थ्रू तुम समझते हो कि पीपल आर, मतलब हो सकता है ऑन द वर्ज ऑफ वल्नरेबिलिटी भी आपको दिखते हैं। सो यू नो, मतलब पीपल और सोसाइटी और इंटायर कम्युनिटी कैन गो टू बी वल्नरेबल और मार्जिनलाइज सोसाइटी इन एनी डे, है ना। जैसे कई कई बहुत रिस्क पे होते हैं, तो उसके बाद क्या है कि वो, या फिर जो ऑलरेडी मार्जिनलाइज हो गए हैं तो उसकी सोसाइटी की स्टडी करना, उनकी कम्युनिटी की स्टडी करना, हाउ दे लूज देयर कम्युनिटी स्ट्रेंथ, ये भी स्टडी करना, और फिर उसके बाद कैसे इसको हम बढ़ाएं, ये तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, वो स्किल डेवलप करनी पड़ेगी, पुराने केस स्टडीज पढ़ने पड़ेंगे। एंड देन फाइनली व्हेन द कम्युनिटी इज prepared or created, so how do you push development related agenda in that community, है ना। जैसे एजुकेशन की अवेयरनेस की बात करनी है तो तुमने क्या पॉलिसी बनाओ, क्या कैसे उस कम्युनिटी में यू विल पुट दैट आइडिया इन अ वे सो दैट इट कैन हैव मतलब गुड इम्पैक्ट ओवर द कम्युनिटी कि हाँ एजुकेशन का इम्पोर्टेंस है। या तुमने भी बोला साफ सफाई का, या तुमने भी बोला इकोनॉमिक डेवलपमेंट के रिलेटेड भी। तो हर चीज में आपको जो है उसको कम्युनिटी के ऊपर उसको प्रैक्टिस करना है। तो ये आपको बताया जाएगा, उसकी केस स्टडी बताया जाएगी, इफेक्टिव वे टू डील विथ कम्युनिटी बताया जाएगा, है ना। तो ये सारी चीजें यहाँ पे सीखोगे, समझ गए? जी सर। एक बार उसको कोर्स डिस्क्रिप्शन को दोबारा देखो और फिर इसको करो एक बार और, ठीक है। ठीक है सर। चलो फिर।